Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 15 of Statistics and Probability Theory course. From past few lectures, we are basically discussing giant probability distribution और इसकी मुख्तलिफ जो वेरिएशंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. In basically last class we mainly discussed continuous giant distribution. Giant distribution जो है actually that is on two or more random variables. Generally it can have any numbers, but हम जो mainly discuss कर रहे हैं they are of two variables only. रैंडम वेरिएबल्स हमें ये पता है कि दे कैन बी कंटिन्यूस एंड दे कैन बी डिस्क्रीट. अगर वो रैंडम वेरिएबल्स डिस्क्रीट हैं तो वो डिस्क्रीट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और अगर वो कंटिन्यूस हैं तो दिस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विल बी कंटिन्यूस. जो probability की basic axioms हैं they actually are fit on these giant distributions as well. यानी इसमें for discrete case for all x and y जो f of x y का जो sum है that should be equal to 1, and the basic definition जो है उसमें हम ये भी कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है दैट शुड बी बेसिकली नॉन नेगेटिव. या तो ये पॉजिटिव होगी या ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो सकती है फॉर एन इम्पॉसिबल इवेंट. एंड देन द थर्ड एक्सियम इज जस्ट अबाउट के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू एक्स and y being equal to y is found by this value of the function at that point. So this was giant probability distribution for discrete case. In continuous case again पहली axiom तो हमेशा हमें true रहेगी, positive or at the most zero, that is non-negative value जो होगी that will be there. In this is discrete, this is continuous. In continuous के केस में over full range of x and y, that is from minus infinity to plus infinity, जो f of x comma y है और obviously dx dy, that should be equal to 1. And this was the main difference or key difference जहाँ पे हम थोड़ा सा फ़र्क करते हैं कि in discrete cases हम probability find कर सकते हैं at exactly one point, but in continuous cases we only can find the probability in a region or for a certain range. जैसे कि हम इस केस में since we need a little bit more space, that p of x y belonging to some interval or region A such that x जो है that may be lying between A and B and y जो है that is lying between C and D. तो जो probability है of x being A and B and probability of y between C and D, this will be given by from integral from A to B and integral from C to D
एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे हम डी वाई डी एक्स लिखेंगे क्योंकि हमने इंटीग्रल्स जो हैं वो इस तरतीब से लिखे हैं. तो प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ दिस रेंज वुड बी फाउंड बाय दिस मेथड. We did solve a few examples, और उसके बाद we continued our discussion on another concept which was called marginal distributions. We will continue our discussion today on marginal distributions and related topics like conditional probability distribution and so on and so forth for both discrete and continuous random variables. So today we will continue our discussion on probability distribution functions, in which we will mainly discuss marginally probability distributions and their applications. Last class में we defined this marginal distribution. आज हम उसको continue करेंगे as well. Marginal distribution जो है that is defined for x alone or y alone. In discrete case it will be g of x is equal to summation of f of x y taken over y only. यानी सिर्फ y की terms जो हैं वो सारी की सारी हम चेंज करेंगे, x की कोई एक वैल्यू रहेगी. सिमिलरली h ऑफ y जो है, दिस इज h ऑफ y टू बी मोर क्लियर, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ f ऑफ x y टेकन ओवर x. इसी तरह से कंटिन्यूस केस में g ऑफ x यानी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू x is equal to integral of f of x y taken from minus infinity to plus infinity over y, while h of y जो है that will be equal to integral of f of x y taken from minus infinity to plus infinity, and this integral is with respect to x, और ये होगा continuous case में. So now we solve those examples for a discrete case and continuous case जो अभी तक हम पहले करते आए हैं. तो if you remember we had that problem जिसमें हमारे पास 8 pens थे and 3 were of one color and 2 were for other color and 2 were for another color. तो इस तरह से we had different distribution. उसमें हमने एक distribution बनाई थी. That was given by this table f of x y for x 0 0, यानी f of 0 0 जो है that was equal to 3 by 28, f of 0 1 was 3 by 14, f of 0 2 was 1 by 28. Similarly, f of 1 0 was 9 by 28, and 1 1 was 3 by 14, and 1 2 was 0. 2 0 was 3 by 28, and remaining 2 यानी 2 1 and 2 2 were zeros. तो अगर हमने इसके लिए फॉर एग्जाम्पल g ऑफ 0 फाइंड करनी है, तो g ऑफ 0 जो है दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 0 प्लस f ऑफ 0 1 plus f of 0 2. This was basically from definition अगर हम देखें for
all rather y's f of x y. तो x जो है दैट इज हमने x यानी जो है वो 0 लिया और y जो है उसकी वैल्यू होगी 0, 1 and 2. तो इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट दिस g of 0 which is 3/28 plus 3/14 plus 1/28, and if we take its LCM it's 28, 3 plus 6 plus 1, so this is 10/28 which is equal to 5/14. Similarly, if we take x is equal to 1, y की वैल्यूज उसी तरह से चेंज होंगी. g of 1 जो है that will be equal to f of 1, 0 plus f of 1, 1 plus f of 1, 2 which is equal to 9/28 plus 3/14 plus 0, and this is equal to, again if we take LCM 28 होगा, 9 plus 6 which will be equal to 15/28. g of 2 यानी x जो है हमने अगर 2 कर लिया तो that will be equal to, g of 2 जो है that will be equal to f of 2, 0 plus f of 2, 1 plus f of 2, 2 which is equal to 3/28 plus 0 plus 0 is equal to 3/28. So if we want to write this distribution, we can write it like x, g of x जो है that will be equal to, x की वैल्यूज 0, 1 और 2 हो सकती हैं. इनके लिए हम इनकी वैल्यूज 5/14, then we have 15/28, and then we have 3/28. ये वैल्यूज जो हैं this will be marginal distribution of x for this example. Similarly, we can do the same for h of 0 यानी y जो है that will remain 0. तो this will be equal to, basically पहले हमने अगर कॉलम्स को ऐड किया है तो अब हम रोज को ऐड करेंगे. I will just write one of the values यानी f of 0, 0 plus f of 1, 0 plus f of 2, 0. यानी x की वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो रही हैं, y जो है दैट इज x जो है दैट इज इक्वल टू 0, 1, 2. y की वैल्यू जो है दैट इज फिक्स टू 0. तो इनको अगर हम ये देखें तो ये वाली रो बनती है दिस रो, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/28 प्लस 9/28 plus 3/28, and if we do this as a sum, तो ये होगा 3 plus 9 plus 3 which is equal to 15/28. Similarly, we can write this h of 1 which will be equal to 3/14 plus 3/14 plus 0 which will be equal to basically 6/14, so it will be equal to 3/7. And h of 2 जो है that will be this last row which will be essentially equal to 1/28. तो हम marginal distribution of
y को भी y h ऑफ y को भी उसी तरह से लिख सकते हैं 0, 1 और 2 में. दिस विल बी इक्वल टू 15/28, 3/7 और 1/28. So these are the marginal distributions with respect to x. Similarly, marginal distribution with respect to y. Now let's do an example for continuous case. Continuous case में basically we have this f of x comma y, which is 2 divided by 5 into 2x plus 3y for 0 is less or equal to x is less or equal to 1, yani this lies between 0, x lies between 0 and 1, and same is the case with the y, and it's 0 elsewhere. तो अगर अब हमें g of x find करना है तो we will have to do it कि integration of f of x y from minus infinity to plus infinity dy, यानी y will be integrated out. So this can be basically broken into, जैसे हम इस तरह की एग्जांपल्स को करते आए हैं कि this will be broken into 3 intervals, के एक इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, दूसरा इंटरवल होगा 0 से 1 तक और तीसरा इंटरवल होगा 1 से इन्फिनिटी तक. In both cases, since this function is 0, क्योंकि वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो दे विल बी डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो 0 होता है. अगर इम्प्रॉपर इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, यानी इसमें लिमिट्स ना हो, तो फिर हमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है. बट फॉर डेफिनेट इंटीग्रल कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट विल बी माइनस द सेम कांस्टेंट विल बी 0. सो इसकी वैल्यू जो होगी 0 होगी आउटसाइड दिस इंटरवल. तो हमने बेसिकली इंटीग्रेट करना है ओवर y, तो y की लिमिट्स जो हैं वो 0 से 1 तक हैं. f of x y की वैल्यू इज 2/5 इंटू 2x प्लस 3y dy. सो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट दिस 2xy प्लस 3y square divided by 2 integrated from 0 to 1. तो इसकी लिमिट्स जो होंगी यानी y is equal to 0 and y is equal to 1. x की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी. सो इसको जब हम इसमें जब वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो जब हम y इज इक्वल टू 0 प्लग इन करते हैं तो एवरीथिंग विल बी 0. तो वी शुड नॉट वरीड अबाउट के माइनस के बाद क्या आएगा. 1 y को हम जस्ट y को 1 पुट करेंगे तो वट एवर इज द वैल्यू विल बी आवर आंसर, यानी 2/5, और y की बजाय हमने 1 पुट किया. तो दिस इज अ वेरी सिंपल केस वेयर वी गेट 2x प्लस 3 this is 2. So this will be marginal distribution of x with respect to x, यानी g of x जो है that will represent marginal, यानी g of x जो है that is then equal to 2/5 into 2x plus 3/2, which can be written as 4x प्लस 3 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5. So this will be the basically marginal distribution with respect to x. तो हम x की जो वैल्यूज है वो चेंज करते रहेंगे and we will get a new value. Similarly, if we have to find this h of y, तो h of y में again
we will have to integrate the same function, but now with respect to x. Same arguments के माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, तो दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 1 ओनली, और एफ ऑफ एक्स वाई की बजाय हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 2/5 इंटू 2x प्लस 3y, विच इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x. अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट 2/5 को हम यूँ लिख सकते हैं, दिस विल बी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 3xy, और x की वैल्यू जो है दैट इज 0 से 1 तक. सो इफ वी सिंप्लीफाई इट, तो वी गेट 2/5 इंटू 0, चूंकि दोनों में x आ रहा है तो 0 वाली वैल्यू 0 हो जाएगी. सिर्फ वी शुड बी बादर्ड अबाउट के what is x is equal to 1 giving us. तो this will be equal to 1 plus 3y. x को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया. तो this will be basically h of y, which you can see is only function in y. So this is the marginal distribution with respect to y for this probability distribution function. So to summarize this marginal distribution, कि हम करते क्या हैं कि अगर हमें डिस्क्रीट केस है तो जिस भी नंबर के लिए हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, वी विल प्लेस दैट वैल्यू इन द एक्सप्रेशन, और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे, उन सबको ऐड कर लेंगे. द रिजल्ट विल बी द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट नंबर विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल. इन कंटिन्यूस केस अगर हम फॉर एग्जांपल x के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, एंड वाइस वर्सा. अगर y के लिए करना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विच विल गिव अस मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दिस वे. तो इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू सी कि व्हाट आर द लिमिट्स, फंक्शन कहाँ पे किस तरह से डिफाइंड है. तो नॉर्मली वी डू हैव दिस प्रॉब्लम विच इज सिंप्लीफाइड. सो द फैक्ट दैट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस g of x and h of y are indeed the probability distributions of individual variables x and y alone can be verified by showing the conditions of the definition are satisfied. यानी हम जो इसकी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशन है, जो वैल्यूज हैं, इनके ऊपर जब हम डेफिनेशन की कंडीशंस अप्लाई करें, तो इन दैट केस वी कैन शो कि जो ये हैं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू x ओनली और y ओनली. फॉर दैट बेसिकली वी विल हैव टू डू ऑल थिंग्स, यानी x की सारी वैल्यूज अब इसमें हम रिप्लेस करेंगे, एंड वी विल फाइंड द वैल्यूज, एंड वी विल रिप्लेस ऑल द वैल्यूज फ्रॉम ऑफ y, एंड वी विल फाइंड ऑल द वैल्यूज, वी विल ऐड देम, तो द आंसर शुड बी 1. और ये हमें देखना पड़ेगा कि ये सारी वैल्यूज जो है हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. इन दिस केस वी कैन सी x जो है वो नॉन नेगेटिव है वैल्यू, चूंकि 0 से 1 तक है और कोई इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, तो इट शुड नॉट रिड्यूस टू अ नेगेटिव वैल्यू. सिमिलरली दिस वैल्यू जो g of y है, इट इज आल्सो अ नॉन नेगेटिव, क्योंकि y जो है दैट इज आल्सो फ्रॉम 0 to 1. अब अगर हमने इनको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस साबित करना है तो वो ऑलरेडी हम इन प्रीवियस एग्जांपल्स कर चुके हैं बाय डूइंग देम जॉइंटली, बट अगर हम इनको सेपरेटली भी करेंगे तो जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं दे शुड रिड्यूस टू 1.
जैसा कि हमने डिस्क्रीट केसेस में देखा था कि दोनों कॉलम्स के जो सम्स हैं वो दे टर्न आउट टू बी 1. नाउ लेट्स डिफाइन अनदर कॉन्सेप्ट जो कि मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए वी हैव. इट्स बेसिकली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं. तो लेट x एंड y बी टू रैंडम वेरिएबल्स, दे मे बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. डेफिनेशन विल रिमेन द सेम, बस इनकी जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं दे विल बी कैलकुलेटेड ऑन विद अ डिफरेंट मेथड. यानी डिस्क्रीट के केस में मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो समेशन से कैलकुलेट होंगी, और कंटिन्यूस के केस में जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं दे विल बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशंस. So these basically the conditional distribution of the random variable y given that x is equal to x, जैसा कि हमने वन वेरिएबल के लिए किया था, उसमें हम बेसिकली वी वर डिफाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b है. इसमें हम इस केस में द डिफरेंस वाज कि a और b वर द सेम थिंग्स और टू डिफरेंट इवेंट्स की बात कर रहे थे. यहां पे हम एक ही वक्त में एक ही इवेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो हम वेरिएबल है उसको फिक्स कर रहे हैं. तो बोथ थिंग्स कैन बी टेकन, यानी इसको हम अगर एक दूसरे में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और हम इनको इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं. क्योंकि यहां पे हमें जनरली जब हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे होते हैं तो टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी x और y जो होंगे जनरली x एंड y आर इंडिपेंडेंट. बट इन दिस केस जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, a एंड b मे और मे नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो यहां पे ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखना जरूरी है. हम इसको इसमें तभी ट्रांसलेट कर सकेंगे इस केस में, यानी इन दोनों को इक्विवेलेंटली तब देख सकेंगे जब ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे इवेंट्स. अगर ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम ये डेफिनेशन उस पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे. सो यहां पे f ऑफ y गिवन x जो है दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई g ऑफ x, वेयर g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. जब भी हम डिवाइड करते हैं जो कोशेंट है वो तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नॉन नेगेटिव, बट जो डिवाइजर है दैट शुड नॉट बी 0. उससे वी गो टू एन अनडिफाइंड वैल्यू और हम इनफाइनाइट वैल्यू के रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं. सिमिलरली the conditional distribution of the random variable x given that y is equal to y is f of x given y is equal to f of x y divided by h of x y, where h of y is not equal to 0. अब हमें ये पता है कि जो f of x y जो हैं वो क्या हैं, they are joint probability distributions. Joint probability distributions of x and y, rather हम इसको कैपिटल में यूज करते हैं. एंड what is g of x? g of x is marginal distribution, यानी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू x ओनली. सिमिलरली h जो होगा विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, और जो h ऑफ y है दैट विल बी इक्वल टू मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू y ओनली. सो कंडीशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है that will be found by joint probability distribution divided by the
मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी x के अगर होने की, यानी x हो चुका है और y हो तो हम g ऑफ x से डिवाइड करेंगे, और अगर y हो चुका है और x की कोई प्रोबेबिलिटी देखनी हो तो हम h ऑफ y से डिवाइड करेंगे. So this will give us conditional distribution. Here let's do the conditional probability. कि हमने बेसिकली ये देखना है कि what is the probability, let's say हम f of x y f of y given x फाइंड करना है. Which will be found out by this value. Now if we have to find this f of y given x, यानी अब y जो है हम उसको कहते हैं कि that is 0 and x जो है that is equal to 1. तो जो f of 0 given 1 जो है that will be equal to जो f of 0 y है divided by f of g of 1, वो हम यूज करेंगे. नाउ f of 0 y जो है that is basically this column. तो हम इसको that will be, it means कि 5 by 14 divided by g of 1. Here we have g of 1. तो g of 1 जो है that is कि x की all values for y is equal to 1, that will be equal to 3 by 7. So this will be equal to, यानी ये वाली वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, this will be equal to 5 by 14 multiplied by 7 by 3. तो this value will be 5 by 6. And if we have to find this f of 0 2 for example, तो हम 2 वाली वैल्यूज देखेंगे, यानी g of 2 which will be 1 by 28, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1 by 28 से. So this will basically give us conditional distributions in this form. और अगर हम f of x given y कर रहे हैं तो फिर हम h of y से डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग फैक्टर जो होगा वो h of y हो जाएगा नीचे वाला, और इंडिविजुअल वैल्यूज जो हैं उनको हम पकड़ के डिवाइड करते रहेंगे. So this way we will evaluate marginal distributions. Let's solve another example. The joint density of the random variables x, y, where x is the unit temperature change and y is the proportion of spectrum shift that a certain atomic particle produces, is f of x y is equal to, यानी f of x y जो है that is defined as 10xy square for x being between 0 and x is always less than y is, and these are values between 0 and 1, and it's 0
अदरवाइज, यानी अगर x जो है वो y से बड़ा हो जाए तब भी ये 0 होगा, और अगर और इस इंटरवल से बाहर भी ये फंक्शन 0 होगा। अब हमने सबसे पहले तो ये देखना होता है, जब हमने मार्जिनल डेंसिटीज देखनी है एंड कंडीशनल डेंसिटीज, f of y given x and find the probability that the spectrum shifts more than half of the total observations given that the temperature is increased to 0.25 unit. तो let's see the first part पहले कि g of x, h of x find करनी है and we have to find conditional densities f of y given x. तो सबसे पहले we must see कि whether it is a giant probability distribution or not. Although it's given, but just to verify, हम basically जो इसको देखेंगे कि is it a non-negative value? Yes. यानी if f of x y जो है that is always positive or equal to 0. ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि x और y की जो वैल्यूज हैं दे आर बिटवीन 0 एंड 1. नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं, y की तो अगर नेगेटिव हो भी जाए तो भी इट विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव वैल्यू, बट दे आर ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यूज, सो f of x y विल रिमेन पॉजिटिव ऑलवेज. अब दूसरा ये है कि अगर हम इसको ओवर द इंटरवल सम करें या इंटीग्रेट करें तो दैट शुड बी इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू 1. तो इस इज बेसिकली 0 to x एंड x to y, या बेसिकली इट इज इक्वल टू x to 1 टाइप फंक्शन होगा, जो कि हमें 10xy स्क्वायर dy dx से मिलेगा. दिस इज बिकॉज कि x जो है वो हमेशा y से छोटा है, तो हमने इस इंटरवल को यूं डिफाइन किया है कि ताकि सारा होल जो इंटरवल है दैट शुड बी कवर्ड. अब अगर हम इस वैल्यू को इवेल्युएट करें, आई लीव दिस फॉर यू एज एन एक्सरसाइज कि आप इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करके देखें. बेसिकली दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट. इट शुड बी इक्वल टू 10xy क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और फ्रॉम y इज इक्वल टू x से लेके y इज इक्वल टू 1 तक. सो वी विल गेट अ फंक्शन, और जिसको हमने 0 से अगेन x तक इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और उससे हमें कोई एक मे बी वैल्यू मिलेगी इन x, फंक्शन मिलेगा, और x की कोई वैल्यू हम 0 और 1 के दरमियान प्लग इन करके देखें कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नहीं. तो मोस्ट लाइकली इट शुड बी positive, these should be positive values and the sum should be equal to 1. तो इसको हम जब इंटीग्रेट करें और किसी for any value of x, it should be giving a value which is 1. So this way we can prove this is a giant probability distribution. However, here our problem is कि हमने marginal densities find करनी है with respect to x and with respect to y. Let's find g of x that is equal to integral from minus infinity to plus infinity f of xy dy, which will be equal to integral from x to 1 10xy square dy, which will give us 10 by 3 xy cube
y is equal to x, y is equal to 1, and that is equal to 10 by 3 x into 1 minus x cube. 0 is less than x is less than 1. So this is basically a simple integration, और उसमें हमने वैल्यूज जो हैं वो प्लग इन कर दी. सिमिलरली जो h ऑफ y है दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ x comma y dx, which will be equal to integral from 0 to y 10x y square dx is equal to 5x square y square. X is equal to 0, x is equal to y, which gives us the value 5y to the 4 for y lying between 0 and 1. Now, f of y given x जो है that is equal to f of x comma y divided by g of x, and this is equal to 10x y square divided by 10 by 3 into x 1 minus x cube, which is equal to 3y square divided by 1 minus x cube. In second part, so this will be basically conditional probability distribution. F of y given x that is equal to 3y square divided by 1 minus x cube. Basic relationships हमने use की हैं. The second part was find the probability that the spectrum shifts more than half of the total observations given that temperature is increased to 0.25 units. यानी हम ये कह रहे हैं कि we have to find the probability of y being greater than half such that x जो है that is equal to 0.25. Since जो x was is the unit temperature change, यानी अब हमने change जो है वो 0.25 कर दी है, and y is a proportion of the spectrum shifts in a certain atomic particle produces. तो जो shift है that is greater than half provided this temperature increase is 0.25. So what we will do is कि हम just we will use these values कि अब हमने integrate करना होगा from half to 1, यानी y की value जो है that can go from half to 1 f of y given x को, and this integration is with respect to y of course. So this will be basically from 1 to 2, 1 by 2 to 1. This was 3y square divided by 1 minus 0.25 cube dy, and this is equal to, if we do everything right, is 8 by 9. So यहाँ पे अगर हमें सिर्फ एक वैल्यू दी गई होती कि y इज इक्वल टू 1/2 तो हमें ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत पेश ना आती. अब चूंकि हमने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे हमने ये देखना था कि प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन हाफ, यानी हाफ से लेके 1 तक हो सकती है, तो हमें सारी प्रोबेबिलिटीज को
ऐड करना पड़ता है, इसलिए वी आर डूइंग दिस इंटीग्रेशन. So in marginal distributions, basically we find the distribution with respect to one variable from a giant distribution, and we can also find the conditional distributions by dividing the distribution of that function by this marginal distribution. So let's solve another example. इसमें we have to find g of x, h of y, and f of x given y, and evaluate probability of x lying between 0.25 and 0.5 given y is equal to 3. If the joint density function f of x y जो है that is equal to 3 times 1 plus 3y square divided by 4 and is equal to 0. It is non-zero for x between 0 and 2 and y जो है that is between 0 and 1. So we can again evaluate कि ये distribution function है या नहीं है. as an exercise you can do it by yourself. Here we assume कि it is, but I will strongly recommend कि आप इस function को भी integrate करके देखें just as a practice. यानी non-zero तो ये नज़र आ रहा है. You have to integrate it from 0 to 2 and 0 to 1 f of x y ये जो वैल्यू है dy dx, और you can switch the integrals, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. g of x जो है that will then be equal to integral from minus infinity to plus infinity f of xy dy will be 0 to 1 x into 1 plus 3y square divided by 4 dy. अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 3x y cube divided by 3, and this whole is multiplied by 1 by 4, और y की वैल्यू जो है that is 0 and 1. So this is actually equal to g of x जो है that will be equal to 1 by 4 into xy plus xy cube, which will be equal to 1 plus which will be equal to basically x by 2. Similarly, we can find h of y, which will be, मैं अब सारे इंटीग्रल्स नहीं लिख रहा, सिर्फ रेलिवेंट इंटीग्रल है उसको लिख रहा हूँ. It's integration from 0 to 2 of this x into 1 plus 3y square divided by 4 dx, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो we will get x square by 8 plus 3x square y square divided by 8, जबकि x की वैल्यूज जो हैं
दे आर 0 एंड 2, और ये वैल्यूज़ हम जब प्लग इन करते हैं तो वी गेट 1 प्लस 3 y square divided by 2. Now f of x given y जो है that will be actually f of x y divided by h of y, which turns out to be basically x by 2. And similarly we can find f of y given x, वो हम इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. So what we can do is कि हम इन चीज़ों को यूं evaluate कर लेते हैं. The second part of this problem is कि we have to find the probability of x being between 1 by 4 and 1/2 given y is equal to 3, which means that we have to integrate this f of x y, ये जो फंक्शन हमने फाइंड किया, यानी f of x given y जो है इसको हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 by 4 to 1 by 3, and x जो है that is equal to 3. We will integrate it with respect to x. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो the value that we get is 3 by 64. So that way we can find the probabilities. Again इंटीग्रेशन हमने इसमें इसलिए की है या इसलिए हमें करना पड़ती है कि we are integrating over we have to take a certain range. कंटिन्यूस के केसेस में हमें वो probabilities ऐड करना होती हैं ऑफ ऑल रेंज जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं. तो जब रेंज को हम डिफाइन कर रहे होते हैं ऑन कंटिन्यूस स्केल तो समेशन का तरीका यही है कि हम उन दोनों चीज़ों को ऐड कर देते हैं. So basically today we discussed marginal and conditional distributions with examples. Marginal distributions में हमने क्या बात की थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है that is जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से हम अगर एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर उनको सम कर दें तो that would be marginal distribution with respect to that variable, चाहे वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है. अब अगर जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दें तो हमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है. अगेन वेदर इट इज कंटिन्यूस और डिस्क्रीट. कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि फ़र्क सिर्फ समेशन और इंटीग्रेशन का पड़ता है. मैथमेटिकली स्पीकिंग दीज आर टू सेम थिंग्स. प्रैक्टिकली यस दे आर सेम, बट एक के केस में हमें इंटीग्रेशन के रूल्स यूज करना पड़ते हैं एंड इन द अदर केस वी हैव टू सिंपल यूज अरिथमेटिक, यानी उनको कैलकुलेट करके वी जस्ट हैव टू ऐड देम. तो हम उन वैल्यूज को ऐड कर देते हैं विच बेसिकली गिव अस द गिवन रिजल्ट्स. So we will continue our discussions on probability distributions. We will see कि more than two variables को हम किस तरह से describe करते हैं. We will just see the definitions. और definitions में फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा कि वो जो values हैं they will be slightly shifted. यानी हमने x और y की बजाय हम x1, x2, x3, xn वेरिएबल्स
की जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर सकेंगे। दैट्स इट, रूल्स तरीके यही रहेंगे, बट वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, हम जस्ट उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, यानी जिसको कि हम मीन वैल्यू कहते हैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसके साथ उसकी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम सिंपल रॉ डेटा के लिए देख चुके हैं, लेकिन अब हम उन्हीं चीज़ों को वी विल मूव टूवर्ड्स कि हम इन चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह से देख सकते हैं। तो नॉर्मली वी विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट्स कहते हैं, कि व्हाट इज़ फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट विच इज़ बेसिकली मीन। हम उन चीज़ों को कर चुके हैं, बट जस्ट वी विल रिव्यू देम, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जॉइंट distributions and individual distributions. So essentially more or less we have completed के distributions के साथ हमने क्या कुछ करना है। अब हम इसकी आगे जो इनसे जो values हम calculate कर सकते हैं उनके ऊपर next classes में discuss करेंगे, and in the following classes हम स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस जो कि जनरली यूज़ की जाती हैं इन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो बस एक पॉइंट जिसको मैं थोड़ा सा रीएम्फसाइज करना चाहूँगा वो ये है कि जो कंडीशनल, मार्जिनल और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स नॉर्मली रहती हैं। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इनकी एग्जांपल्स, इसकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स एंड द असाइनमेंट्स गिवन टू यू अलॉन्ग विद दिस कोर्स, उनको सॉल्व करें, और उसके अलावा भी एनी स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स बुक आप देखें और उसमें से आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगी। एग्जांपल्स को सॉल्व करें, एंड पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप सॉल्व करें। दैट विल हेल्प यू a lot in grasping the ideas. Basically, joint distributions are extensions of one-dimensional, कि हम उसके लिए सिर्फ एक डायमेंशन, एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, इसमें दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। वहाँ पे सिंगल वेरिएबल की समेशन है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स की समेशन है, दो वेरिएबल्स की इंटीग्रेशन है। और चूंकि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हम उनको सेपरेटली भी देख सकते हैं। तो दिस आल्सो लीड्स अस कि हम इनकी स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस जो है वो भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑफ द वेरिएबल्स बाय फ्रॉम देयर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये भी हम इन नेक्स्ट क्लासेस देखेंगे कि इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट तो हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस को किस तरह से देखते हैं, उनको किस तरह से हम कर सकते हैं। सो दैट्स बेसिकली ऑल फॉर टुडे. We will continue our discussions in the same topics in our future classes. So it's goodbye and Allah Hafiz.